Good afternoon, everyone. I am Ms. Siddhi, academic volunteer from SYBEd. Today, we have gathered here to attend an interview session with a special educator. In our second year BEd curriculum, we have a course called Inclusive Education. And in that, we have an assignment of survey of educational needs of exceptional students and infrastructural provisions. Every year, we used to visit one of the special schools in Dombivli. But this year, because of the pandemic, we were not able to organize a physical visit to the special school. But where there is a will, there is a way. We are lucky we got a permission to interact with the faculty members from Kshitij School. Now, I would like to welcome our chief guest, Mrs. Surekha ma'am, the principal, and Mrs. Sheetal, the faculty member from Kshitij School. I would also like to welcome Dr. Amruta Panda ma'am and Mrs. Ranjana Rai ma'am, our teachers and my friends. Now, I would like to call upon the academic volunteer, Ms. Prajakta Sanas, to give an introduction of the speaker. Thank you, Siddhi. Good afternoon, everyone. I am Prajakta Sanas, AGS, profoundly delighted to take this opportunity and introduce our today's resource person for the day, Mrs. Sheetal Manoj Suryavanshi. She has been certified with the Kathak dance degree and teach students dance. She has been dedicatively working from 1999 and always have a positive attitude towards every task for special school. We welcome you, ma'am, and we look forward to hear from you. Some of the basic instruction for the students are, now our academic volunteer, Ms. Shweta Nair, will proceed with the interview questions. And after interview question, we will have a doubt clearing session. So if you have any doubts related to the session or questions, you can clear your doubts after interview. Now I request our academic volunteer, Ms. Shweta Nair, to start with the interview session. Thank you. Thank you, Prajakta. So, Sheetal ma'am. Sheetal ma'am, are you there? Am I audible to you? Hello. Hello. Hello, ma'am. You're audible. Yeah. Can you hear me? Yes, ma'am. But your video is off. Hello. Ma'am, you're audible. आवाज आ रही है? Yes, ma'am. You're audible. Yes, ma'am. But your video is Yes, off. yes. Please keep your video on, ma'am. Okay. Yeah. Now we are able to see you. Hello. Hi, everybody. Okay. Good to see you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, all of you. Yeah. Okay. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon. Very nice to meet you. Yeah. Thank you so much, ma'am. Good to see you. Okay. Network problem is going on. Yes, ma'am. We can understand. Okay. Hello, everybody. Our school is recognized by till 1995. हमारे स्कूल की 95 से स्थापना हुई है और हमारे यहाँ पे जो ट्रस्टी है, they are all our ladies. From 5 children we have started school. Hello, are you hear me? Yes, ma'am. Yes. 5 बच्चे से ये स्कूल चालू हो गई थी. तो हमारी जो ट्रस्टीज है, they are all our ladies member है और उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके ये स्कूल ओपन किया है और हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है वो भी पूरा मोस्टली 95% लेडीज ही स्टाफ है. Okay, ma'am. हेलो. Yes, ma'am. और यहाँ पे जो बच्चे लोग का एडमिशंस वगैरह जो होता है, प्रोसीजर होता है, तो हम सबको लेते हैं. ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज आवर ड्यूटी टू टीच ऑल ऑफ चिल्ड्रन. So first of all, when the students will come here, first we assess the children. Then what level he is going on, because normal जो रहता है अपना IQ जो रहता है वो 90 plus रहता है, जो normal रहता है, और below 17 जो रहता है वो they are comes under mental retardation. Now we are not using mental retardations, we are using intellectual disability, ID students. Yes. तो जो ID students है उनका normal IQ below 17 होता है. फिर according to that we have psychologist here
और हम उनसे IQ निकलवाते हैं। फिर वहां से वो सिविल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सिविल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दिस सर्टिफिकेट्स ओनली प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट डॉक्टर्स ओनली। और वो जो सर्टिफिकेट्स आता है, फिर वो सर्टिफिकेट के बाद में हम लोग बच्चों लोग को एडमिशंस देते हैं। और एडमिशन देने के बाद फिर उनको बच्चों लोग को असेसमेंट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। We have some task. According to that, we analysis the childrens, and according to that we put that particular class. जो लोग बच्चे लोग माइल्ड कैटेगरीज है, मतलब माइल्ड कैटेगरीज जो बच्चे लोग है, they can hear, they can understand the language, receptive and expressive language they are known. तो वो हिसाब से फिर हम लोग वो क्लास में उनको बिठाते हैं। और उन हेलो, समझ में आ रही है? आई एम गोइंग फास्ट। यस नो समझ में आ रही है मैम। या ओके, यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क मी। ओके, फिर हम लोग बच्चों लोग के क्लास में देने के बाद टीचर असेस करके IEP प्रोग्राम बनाते हैं, इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम। वो हर बच्चे का अलग होता है, मतलब एक क्लास में 10 बच्चे लोग रहते हैं, 10 बच्चों लोग के एक टीचर रहती है, और वो टीचर उनको 1-to-1 बेसिस के ऊपर टाइम टेबल के हिसाब से वो सिखाते हैं टीचर्स। फिर उनका कॉग्निटिव स्किल्स रहता है, कम्युनिकेशन स्किल्स रहता है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग स्किल्स रहता है, देन साइको सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर रहता है। मतलब बच्चों लोग का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हम लोग बच्चों लोग को करवाते हैं। Not only education, but we are giving prefer to all psychological social behavior. उनके साथ बच्चों लोग का जो ऑटिस्टिक हम साइकेट्रिस्ट के मदद से उनका मेडिसिन सजेस्ट करते हैं, और फिर वो हिसाब से बच्चों लोग का डेवलपमेंट करते हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों लोग डांस, ड्रामा, ड्राइंग, Is Surekha ma'am audible to anyone? No, we have to. Sure. Yeah, ma'am has joined back. यस। Yes, ma'am. अच्छा, समझ में आ रहा है? कोई पूछना है आपको? मैं फास्ट जा रही हूँ। नो मैम, Hello. समझ में आ रहा है मैम। यस समझ में आ रहा है मैम। अच्छा, हाँ। तो वो हिसाब से हम लोग बच्चों लोग को सिखाते हैं। और आफ्टर 18th है हमारे जो टिल 18 वी आर गिविंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स। और आफ्टर 18th जो है हमारे स्कूल के जो ट्रस्ट है, वो 18 के बाद बच्चों लोग को अगरबत्ती मेकिंग, कैंडल मेकिंग, मुखवास मेकिंग, चकली, जो अपना जो सीजनल आइटम्स है वो हम लोग ऑर्डर से बनाते हैं, अंडर सुपरविजन टीचर लोग रहते हैं। फिर हम लोग उनसे बनवाते हैं, उनका फिर हम लोग मार्केटिंग करते हैं। ऐसा मतलब रिहेबिलिटेशन उसमें भी हम लोग करते हैं बच्चों लोग का। ऐसे अभी स्कूल में टोटल 100 स्टूडेंट है टोटल। हाँ, तो वो हिसाब से हम लोग करते हैं फिर बच्चों लोग का। अभी ऑनलाइन ही चल रहा है कोविड की वजह से। Okay. Ma'am, Yeah. may I know what were the activities that were conducted post 18 years of age? Pardon? May I know the activities that are conducted post 18 years of age? You just mentioned agarbatti making and. हाँ, अगरबत्ती, कैंडल मेकिंग, देन बुके मेकिंग। वी हैव जस्ट बुकेस, फ्लावर मेकिंग रहता है, सीजनल और रहता है सब। गणपति के टाइम राखी मेकिंग। Okay, ma'am. Thank you. This is the bouquet we are making, and Beautiful ma'am. Wow, great. दिस इज ऑल फील्ड वर्क। हाँ, ये सब बच्चों लोग, कोई बच्चे लोग है वो कटिंग करते हैं, कोई फ्लावर वो रोल करते हैं, कोई स्टिकिंग करता है, कोई पूरा ये इसमें बहुत कैटेगरीज है। फिर वो हम लोग बच्चों लोग से बनवाते हैं और फिर इसका मार्केटिंग करते हैं।
Okay, ma'am, beautiful. So, ma'am, so shall we start the question answer session? Yes, yes. Thank you so much. So, yes. So, here comes our first question, ma'am, to you. That is, what is the student teacher ratio in your school, ma'am? वैसे तो हमारे यहाँ रेशियो मीन्स हमारे यहाँ टीचर्स 6 टीचर्स है, तो हर एक टीचर्स को एक क्लास में 8 to 10 चिल्ड्रंस ऐसे देते हैं हम लोग, और वो भी क्लास वाइज देते हैं, प्राइमरी, प्री प्राइमरी, प्री वोकेशनल, वोकेशनल ऐसे रहते हैं हमारे. Okay, so for one teacher, there will be almost 8 to 10 students, like that, ma'am? Only 8 to 10 चिल्ड्रंस. Okay, okay, ma'am. Okay. So, next question, ma'am. Which teaching methodology you apply for teaching learning process? Which is the teaching methodology you apply? टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलेंगे तो हम हमारे यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 टीचिंग ही प्रोसेस रहती है. Okay. बच्चे ऐसे है तो 1-to-1 टीचिंग ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं बच्चों को. कॉम्प्लेक्स और टास्क एनालिसिस करके हम लोग उन लोगों को पढ़ाते हैं. Okay, एक okay. टास्क लेंगे, उसका सब टास्क करते हैं और सब ऐसे पढ़ाते हैं हम लोग. Okay, ma'am. Okay, so it's kind of personalized teaching, right, ma'am? मतलब ऐसा एकदम ऐसा पर्सनल, मतलब हर एक बच्चों को पर्सनल अटेंशन, हर एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दिया जाता है, उसको लिया जाता है, और उसका क्या उसमें क्या उसको क्या दिलचस्पी है, क्या सीखना उसको अच्छा लगता है, उस हिसाब से हम लोग सिखाते हैं. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. So now here comes the next question. So how do you document the details of the students? डिटेल्स मीन्स एडमिशन के टाइम. हाँ, बच्चों का सब डिटेल्स कैसे आप डॉक्यूमेंट करते हो? हाँ, पहले तो हम लोग आईक्यू रिपोर्ट्स लेते हैं, उनके आईक्यू रिपोर्ट्स. Okay. देन सिविल रिपोर्ट्स, देन ऑब्जर्वेशन, देन एडमिशन. Okay, ऐसे ma'am. रहता है. Yeah, thank you. So now here comes the next question. Which curriculum does the school adapt to? Which curriculum? Hello, ma'am. Am I audible to you? Yes, yes. Yeah, ma'am. So which curriculum? स्कूल में नॉर्मल कोई करिकुलम फॉलो करते रहेंगे, कौन से करिकुलम फॉलो करते हैं मैम? अभी तो हम लोग प्रोजेक्ट दिशा है, जय वकील फाउंडेशन, उनका करिकुलम फॉलो कर रहे हैं. अभी ये लॉकडाउन की वजह से उन लोगों ने ऑल ओवर महाराष्ट्र में सबका सेम किया है ये बच्चों के लिए करिकुलम, तो हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं अभी. ओके, सो मैम एक और बार बोल सकते हैं कौन सा करिकुलम मैम? प्रोजेक्ट दिशा का. प्रोजेक्ट दिशा. Which board decides the curriculum of the school? For these children, particular board is not decided because we have some NIMH program also. NIMH अपना इंडिया का जो है RCI recognized जो यूनिवर्सिटीज है, हाँ, जो टीचर लोग का स्पेशल रहता है बीएड्स, वो स्पेशलाइज उनका करिकुलम रहता है अलग से, तो वो हिसाब से हम लोग आईपी प्लान करते हैं. बट लास्ट 2 years से दिशा पोर्टल करके ऑल महाराष्ट्र में करिकुलम जस्ट आ रहा है. दे आर वर्किंग ऑन इट एंड वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स गिवन ऑल द स्कूल्स. सो वी हैव ऑल स्कूल्स हैव डिसाइडेड टू मींस कंटिन्यू दिस प्रोग्राम दिशा पोर्टल. वो जो पोर्टल है उसमें जो है वही है बच्चों लोग का. हेलो मैम, am I audible? लोग का कोई ऐसा, हाँ, आफ्टर. Yeah, Shweta, you are audible. We'll wait for ma'am to get her network issues corrected. Yeah, sure.
हेलो, आ रहा है आवाज? Yeah, ma'am. Yes, yes. यस यस यस, हाँ। तो इनका कोई ऐसा पर्टिकुलर बोर्ड नहीं है, मतलब ऐसा जो स्कूल्स मतलब आईपी प्लान बनाते हैं वैसे ही है, लेकिन दिशा पोर्टल का भी चल रहा है, मतलब ऑल महाराष्ट्र वो प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी वो अंडर सुपरविजन चल रहा है पूरा प्रोग्रेस, लेकिन अच्छा आ रहा है। हमको भी सब स्कूल में अभी एक ही, नॉर्मल में कैसा वो सब सिलेबस सेम है, वैसे दिशा हाँ। पोर्टल अभी चल रहा है, 2 साल से हम लोग कर रहे हैं, वो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अभी हमको भी अच्छा लग रहा है, सब स्कूल में एक ही प्लान आउट हो रहा है करके, तो दिशा पोर्टल का चालू है अभी। वैसे हमारे स्कूल का भी आईपी प्रोग्राम है वैसे, जस्ट आई एम शेयरिंग। Okay. Okay, ma'am. So thank you, ma'am, for that. And yes, the next question I know you have already answered, ma'am. Ma'am, you're not clearly visible, ma'am. It's completely dark. Yes, अच्छा, yes, एक yes. Now you're good. ओके Yeah. ओके। Yeah. This is our school curriculum, like this. See this. This is Kshitij. Okay. Our school logo is Kshitij. Yeah. This is evaluation, मुलांची evaluation. This is all our Marathi. शैक्षणिक आराखडा, वही means evaluation book. Under Okay. this, now we have this all skills. We teachers are there first term, second term. And then here is a ये है टिक मार्क करते हैं हम लोग. Every 3 months we are giving a evaluation. Okay. So yeah, evaluation is done in every 3 months. 3 months, okay. Yeah. Yes. Okay, ma'am. Thank you for that. So yes, ma'am, the next question is already answered from your end. That is, does your school provide IEP? So you already told that about IEP, that yes, the school already follows that. So will you be able to give few more like anything about this IEP which the school follows? आईपी इज इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम है वो. हम लोग बच्चों लोग का, एवरी बच्चों लोग का रहता है वो, सब स्टूडेंट्स का रहता है वो. तो उसमें से हम लोग को पूरा साल भर का वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स रहते हैं. टिल 18 years वी मतलब कंटिन्यू द आईपी प्रोग्राम. बच्चा स्कूल में जब आता है तभी हम लोग उसको असेस करके आईपी बनाते हैं कि बाबा ये क्या कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज मतलब डिसेबिलिटी, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, उसका रिहेबिलिटेशन क्या हो सकता है आगे, वो हिसाब से प्लान आउट करके वो हम लोग आईपी बनाते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स. और उसमें भी टास्क रहता है, फिर अकॉर्डिंग टू टास्क वी आर टेकिंग ऑल द एक्टिविटीज. Okay, okay. बट ऑल स्कूल में जो काउंसलिंग सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. Okay. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. Thank you. So now here is the next question. In which उसके लिए हम लोग situation- पेरेंट्स का सेमिनार्स Yeah. रखते हैं, वर्कशॉप रखते हैं काउंसलिंग सेशन में, उनको थोड़ा एक्टिविटीज रखते हैं, एक्सरसाइजेस रखते हैं स्कूल में. वर्कशॉप रहेंगे तो फिर अच्छा. Hello, Sheetal ma'am. Hello, ma'am. Am I audible? Yeah, ma'am. Yes. So yes, ma'am. आप बोल रही थी मैम that is parents का counseling इतना important क्यों है? फॉर एवरी टर्न, मतलब स्टूडेंट स्कूल में आने के बाद, बच्चे लोग स्कूल एडमिशन होने के बाद ही उसमें काउंसलिंग पॉजिटिविटी लाना बहुत जरूरी है, और पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स करेंगे तो ही हम लोग करेंगे, ऐसा रहता है. तो उनको थ्रू काउंसलिंग उनको पॉजिटिविटी लाते रहते हैं हम लोग. बच्चों लोग का भी काउंसलिंग रहता है, बच्चों लोग में बिहेवियर प्रॉब्लम रहता है, सब बिहेवियर प्रॉब्लम में जो 13-14 बच्चा साल के स्टूडेंट है उनमें थोड़ा हार्मोन्स चेंज रहता है, तो उनमें समझ में नहीं आता है क्या करें. ऑटिस्टिक चिल्ड्रन रहेंगे तो उनको समझ में नहीं आता है सोशल बिहेवियर, हाउ टू बिहेव, तो उनमें काउंसलिंग पेरेंट्स लोग को हमको समझाना पड़ता है. लेडीज स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स रहेंगे तो उनको समझाना पड़ता है पेरेंट्स को, उनका केयर कैसे करना है अभी. तो ये सब स्कूल काउंसलिंग के ऊपर ही चलता है सब. एवरी सिचुएशन वी काउंसिल द पेरेंट, एज वेल एज पेरेंट्स आल्सो सम सजेशन देते हैं हमको, ऐसा है करके, वो फिर हम लोग थ्रू कम्युनिकेशन पे ये स्कूल ऐसा चल रहा है, पॉजिटिविटी लाके.
ओके ओके मैम, यस मैम। सो मैम, जब स्टूडेंट्स को काउंसिल करने का टाइम आता है तो मतलब कौन से सिचुएशंस में उनको काउंसिल करना पड़ता है? ऐसा कुछ सिचुएशंस फेस करते हैं आप लोग जिसके वजह से आपको काउंसिल करना ही पड़ता है बच्चों का? ऐसा कुछ सिचुएशंस? अभी उसमें कैसा रहता है, कोई कोई जो माइल्ड कैटेगरीज के स्टूडेंट्स है तो पेरेंट्स का थोड़ा सा ये रहता है कि नहीं हमारा बच्चा सब कुछ कर सकता है, खाली पढ़ाई नहीं कर सकता है। उनका ये रहता है, वो सब करता है, उसको सब आता है, वो सब टीवी देखता है, सब देखता है, सब देखता है, लेकिन पढ़ाई नहीं करता है। लेकिन वो क्यों नहीं करता है, वो उनको समझ में लाने के लिए उनको काउंसलिंग करना पड़ता है ना। नहीं फिर हम लोग, उनका टर्न रहता है नहीं हम लोग उसको नॉर्मल स्कूल में भेजेंगे। नॉर्मल स्कूल का भी तो टिल 8th सब पासिंग है तो वो पास हो जाएगा, फिर आगे कुछ बढ़ सकेगा, फिर वो पास, मतलब ये थोड़ा सा उनका व्यूज रहता है। स्पेशल स्कूल का जो उनका ये रहता है कि क्या या मैम बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी मैम। यस, तो या मैम आप बोल रही थी। यस, पास जा रही है, पास जा रही हो क्या? नहीं ना, नहीं नहीं मैम, नहीं नहीं नो ना। नो। हाँ, तो एवरी सिचुएशन में रहता है, फिर पेरेंट्स लोग को समझाना पड़ता है कि नहीं बच्चों लोग का ये जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें ऐसा ऐसा है। और नॉर्मल स्कूल में जाएगा तो ये बच्चा कैसा लास्ट बेंच पे बैठता है, फिर कैसा होता है उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाता है। और ऐसे पेरेंट्स है बहुत से, उन्होंने ये स्कूल में डाला, फिर नॉर्मल स्कूल में डाला, नॉर्मल स्कूल से फिर से ये स्कूल में भी आ गए कि उधर का वो बच्चों लोग इन्वायरमेंट यहाँ कैसे रहता है। टीचर लोग रहता है, उनका जो स्पेशलाइज्ड होता है वो बच्चों के लिए, बच्चों में होता है, तो सब बच्चों लोग का उनको वो पता चलता है ऑब्जर्वेशन कैसा है क्या है। नॉर्मल में इतना नहीं होता है। और हाँ, तो वो हिसाब से वो बच्चा लोग उधर एडजस्ट नहीं होता है। इवन बच्चों लोग एडजस्ट नहीं होते हैं, फिर हाइपरनेस बढ़ जाता है उनमें। हाँ, तो वो रहता है। बाकी अदर अदर भी बहुत इश्यूज है बच्चों लोग के, पर्सनल इश्यूज है, फैमिली इश्यूज है, उसके लिए हमको काउंसलिंग करना ही पड़ता है। ओके मैम। सब्जेक्ट्स नहीं है ये, बच्चों लोग का सब्जेक्ट्स रहता ही है पूरा, उनका बिहेवियर प्रॉब्लम रहता है, उनका पूरा सोशल डेवलपमेंट रहता है, सब रहता है, फंक्शनल एक्टिविटीज रहता है, तो उसमें काउंसलिंग करना ही पड़ता है हमको एट एवरी सिचुएशन। Okay, okay, yeah, ma'am. Thank you, ma'am. So, ma'am, now the next question. So, कैसे counsel करते हो? That is, how do you counsel the students in your school, ma'am? काउंसलिंग करना मतलब कैसे है, हम लोग आएंगे तो खाली हम लोग की टीचर्स बोलेंगे नहीं आपको ऐसा करना है वैसा करना है, ये तो नहीं है। पेरेंट्स का क्या प्रॉब्लम है वो भी सुनना जरूरी है ना, लिसनिंग। अच्छा Yes, yes. लिसनर भी होना चाहिए, लिसनिंग। ये जो हाँ, ये जो टैक्ट है ये सब टीचर्स में बोलो, सब स्कूल में सब जो है सबको आना चाहिए। इवन हमारी जो केयर टेकर्स है उनको भी हमने बोला है ऐसे जो बात करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ऑलरेडी वो इतना मतलब नर्वस रहते हैं बच्चों लोग के बारे में, तो उनमें कैसे बोलने का, तो हम लोग ऐसा नहीं ना, हाँ आपका बच्चा ऐसा है। Hello? Hello, Surekha, ma'am. Am I audible? Yes. Yeah. So, ma'am, my question was, which para-professional does the school provide to the students? पैरा प्रोफेशनल में हम लोग मेडिकल कैंप वगैरह रखते हैं। Okay. समझो शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो रहते हैं, हाँ उनको हम लोग बुलाते हैं, मतलब बच्चों लोग के लिए ऐसे जो वर्कशॉप्स वगैरह अरेंज करते हैं। मेडिकल कैंप रखते हैं बच्चों लोग का। Okay. उसमें फिजियोथेरापिस्ट रहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट रहते हैं। हाँ, जो बच्चों लोग का डिसेबिलिटी है, मतलब जो सीवियर बच्चों लोग हैं तो उनके लिए फिजियोथेरापी मस्ट है। तो हाँ, फिजियोथेरापी, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, ये जो उनके रिलेटेड जो सब प्रोफेशनल्स है उनको हम लोग बुला के फिर हम लोग कैंप करवाते हैं इनका। Okay, ma'am. और Okay. हमारे स्कूल में जो साइकेट्रिस्ट भी है तो वो आके बच्चों लोग का जो बिहेवियर प्रॉब्लम है उनपे फिर मेडिसिन वगैरह सजेस्ट, वो फॉलोअप्स रहता है, चालू रहता है मतलब वो। ओके ओके, मीन्स ऐसा कुछ ऐसा टाइम नहीं है, वो मतलब थ्रू आउट दी, मतलब इसके अलावा डांसिंग के वगैरह जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स है वो डांस वगैरह जो। Yes, ma'am. So, yes, I would like to move to the next question. So, how does your school provide barrier-free environment to diverse learners?
दैट इज बैरियर फ्री, मतलब बच्चों को वो एक फ्री एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड करते हो? वो भी मतलब लर्नर्स मतलब सब एक जैसे तो होते नहीं है, तो सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं है, तो वह उन लोगों के मूड के हिसाब से हम लोग उनको ये करते हैं। किसी कभी कभी गार्डन गार्डन में वगैरह लेके जाते हैं उनको, ओके। पिकनिक वगैरह अरेंज करते हैं। उनके हिसाब से उन लोगों को आईपी हम लोग चेंज करते हैं। ओके 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 मैम, थैंक यू। सो नाउ अगला क्वेश्चन मैम, हाउ डज यू इवैल्यूएट academic achievements of your students? फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। Okay, First- so term wise. हाँ, टर्म वाइज ही करते हैं, फर्स्ट टर्म देन सेकेंड टर्म। ओके ओके मैम। मैम ऐसा कोई पॉलिसीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आप लोग फॉलो करते हैं आपके स्कूल में, ऐसा कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज? ज्यादा से ज्यादा इन लोगों का रिहैबिलिटेशन के ऊपर ही ये करते हैं ना। ये बच्चों का रिहैबिलिटेशन के हिसाब से गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम आता है हम लोगों के यहाँ स्कॉलर 18 बिलो 18 के बच्चे रहते हैं ना, उनको गवर्नमेंट के यहाँ से स्कॉलरशिप मिलती है। ओके 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 मैम, ओके स्कॉलरशिप, ओके। और मतलब अभी ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में आप कौन से मेजर्स लेते हैं, दैट इज उनका जो लर्निंग प्रोसेस है वो कभी किसी तरीके से अफेक्ट ना हो, उसके लिए आप लोग क्या क्या मेजर्स लेते हैं मैम? होम विजिट करते हैं, देन व्हाट्सएप कॉल, ऐसे ही रहते हैं। अभी ये कोविड की सिचुएशन में तो थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा ठीक हुआ तो हम लोग होम विजिट किया, देन व्हाट्सएप कॉलिंग, मोबाइल रहता है उसके हिसाब से। देन हम लोग लिंक डाल के बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन सेशन लेते हैं उनका अपने सब्जेक्ट के अनुसार। ओके ओके मैम, सो मैम थैंक यू सो मच। तो अब मेरे साइड से तो इतना ही क्वेश्चंस था, बट मैम अभी अगर किसी और को, मतलब किसी हम लोग के फ्रेंड में से किसी और को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आपके परमिशन के साथ मैं उनको बोल सकती हूँ मैम, दैट इज अगर उनको कोई उनका पर्सनल कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो पूछने को मैं बोलूँ मैम? So yes, if anybody is having any questions, so you all can just ask me. Is anybody having any question? Yeah, Meenakshi. Yes, Meenakshi. Yeah. You may. I would like to ask whether it is a residential school or the children. Day school. Day It is a school. day school. Okay. It is a day. Day school. और 11 to 5 है। हमारे स्कूल की बस भी है बच्चों के लिए, तो वो कोपर तक है। Okay. And रेसिडेंशियल नहीं है हम लोगों का स्कूल। okay. And one more question, ma'am. How much interest does the parents take in knowing about their children's progress? Means parents कितने उत्सुक रहते हैं, जानना चाहते हैं बच्चे लोग के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, कैसे कर रहे हैं। ये आपके यहाँ आते हैं पेरेंट्स? ये आते हैं पेरेंट्स। ओके। तो हम लोग उनको बताते हैं, उनका बच्चों का प्रोग्रेस भी बताते हैं उनको, मीन्स वो कैसे ये करते हैं वो। थैंक यू मैम। और थैंक यू वेरी मैम प्रोग्रेस के बारे में बच्चों पेरेंट्स बहुत ये रहते हैं, मतलब क्यूरियस रहते हैं। हम लोग जो असेसमेंट के हिसाब से इवेल्युएशंस करते हैं, अभी फॉर सीवियर चाइल्ड, सपोज सीवियर चाइल्ड जो बच्चे लोग रहते हैं उनका वो दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। तो उनका कैसा रहता है, अगर उनमें जो हमारा स्किल्स रहता है, सपोज स्पून लेके खाना, सपोज बच्चों लोग घर पे वो नहीं खाते थे, लेकिन अगर खाते हैं तो पेरेंट्स को अच्छा लगता है ना कि बाबा ये करता है,
अगर माइल्ड कैटेगरीज का लड़का वो रीड नहीं करता है, लेकिन रीड करता है 1 2 वर्ड्स, अगर खुद का नाम भी रीड करता है, पेरेंट्स का नाम रीड करता है, तो पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, नहीं मैं बाबा इसमें पेरेंट्स ना स्कूल में आने के बाद आफ्टर 2-3 मंथ्स में उनको इतना पॉजिटिविटी आता है ना, नहीं नहीं ये स्कूल में डाल के हम लोग ने अच्छा किया, मतलब स्पेशल स्कूल, व्हाट इज स्पेशल स्कूल है वो उनको स्कूल में डालने के बाद बच्चे लोग को पता चलता है, पेरेंट्स को, कि नहीं नहीं हम लोग ने ये जो डिसीजन लिया है वो अच्छा लिया है। तो अभी तक सही है कि बाबा ये स्कूल में नहीं डालना चाहिए था, मतलब नेगेटिव नहीं है। पहले आने के बाद उनमें थोड़ा नेगेटिविटी रहता है कि क्या स्कूल में है, कुछ सिलेबस नहीं है वगैरह, लेकिन बच्चों लोग का जो डेवलपमेंट देख के बहुत अच्छा है, पेरेंट्स सब अच्छे रहते हैं। कोई कोई स्कूल बच्चों लोग है जो बाहर के स्कूल में आके भी फिर से यहाँ पे उन्होंने एडमिशन लिया है, और कोई कोई पेरेंट्स है बच्चे यहाँ कर देते हैं लेकिन वो घर पे नहीं करते हैं, तो वो बोलते भी है हम लोगों को, टीचर वो घर पे कुछ नहीं करता है, यहाँ कैसे करता है, तो बच्चों के मूड के ऊपर भी डिपेंड रहता है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am, now we have Prajakta. Prajakta is also like she wished to ask some question. Ma'am, Sheetal ma'am, I would like to ask question. What are the facilities that as a teacher, as a special school teacher, you want in your school from the government that should be implemented in your school? That is the need of the school. Which facility, suppose? Ma'am, according to you as a teacher, as a special school teacher, what do you think more should be facilities to be added to the school for the special school children? ये बच्चों लोग को जो सिखाने के लिए टीचर जो रहते हैं ना, वो खाली जो फैक्ट्स वाइज सिखाते हैं, मतलब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऐसा लेके जाते हैं। लेकिन उनके लिए जो सपोज फ्रूट्स है, सपोज फॉर एग्जांपल फ्रूट्स है, बच्चों लोग को फ्रूट सिखाना है, तो फ्रूट्स तो चार्ट पे देखेंगे तो वो थोड़ा सा बच्चों लोग को कलर वो थोड़ा सा ये, तो उनको कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट जो है वो लेके आना पड़ता है। मतलब जो दिखाते हैं पोस्ट ऑफिस, लाइक पोस्ट ऑफिस, तो टीचर एज ए फैसिलिटी करके तो पोस्ट ऑफिस में लेके जाते हैं हम लोग, किराना स्टोर में लेके जाते हैं, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर में लेके जाते हैं। जो फैसिलिटीज बच्चों लोग को चाहिए वो सब हम लोग बच्चों लोग को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऐसे फंक्शनल एक्टिविटीज जो है, मनी कंसेप्ट है, वो मनी कंसेप्ट सिखाने के टाइम पे बच्चों लोग को जो मनी है वो सामने देखा के वो सिखाते हैं। मतलब जो है सब कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स रहता है, फंक्शनल रहता है, बच्चों लोग को जो समझेगा वो कैसे वो ग्रास्पिंग करता है, उससे वो हम लोग उसको फैसिलिटी देते हैं बच्चों लोग को। कोई कोई जो हाइपर बच्चों लोग है वो बैठ के मतलब एक जगह पे बैठ के पढ़ाई नहीं करता है, तो इसके लिए उसको कैसा फिर प्रॉपर एनवायरनमेंट की बाबा उसका टाइमिंग शेड्यूल ये करते हैं, बाबा ये टाइम पे वो अच्छा है, तो वो टाइम के हिसाब से उसका Yes, yes, Prajakta. I think your question answered? Yes, ma'am. But ma'am, I want to know that what they need. Sheetal ma'am, I just want to know that what you need as a teacher, that the government should implement such facilities in the school. Whether that is fund or some material, equipments. That I want to know, ma'am. Sheetal ma'am. हाँ मैम, गवर्नमेंट से आपको क्या प्रोवाइड होना चाहिए? जैसे कि आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, फंड की जरूरत होगी, जैसे कि अभी पैंडेमिक टाइम में इंटरनेट कनेक्शंस अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, उसके लिए फंड्स प्रोवाइड करे, या फिर ऐसा कुछ मटेरियल जो आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं। वैसे तो हम लोगों को गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया ही है और ऑलरेडी किया है, बच्चों के लिए बेंचेस, देन सीसीटीवी,
फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, उतना कम है। हम लोगों को तो लगता है बच्चों का यूनिफॉर्म भी देना चाहिए, पिकनिक के लिए जाने आने का खर्चा वैसे भी हम लोग बोलते हैं, तो नहीं होता है वो। हम लोग मीन्स हम लोगों की अपेक्षा बहुत रहती है, लेकिन उतना होता नहीं है। तो जितना देते हैं उतने में ही हम लोग सेटिस्फाइड है। एक्चुअली ये बच्चों के लिए उन लोगों ने देना चाहिए, लेकिन वो देते नहीं है। ओके ओके मैम, और किसी का कुछ क्वेश्चन पूछना है डियर स्टूडेंट्स? Okay, then shall we move forward with the vote of thanks? Yeah, yes. ma'am. Yeah, Shweta, please announce. Yeah, so now I would like to call our academic volunteer, Raghavi, to propose vote of thanks. Raghavi, are you there? Yeah, thank you, Shweta. So, good afternoon, everyone. I'm Raghavi Subramania here, General Secretary, SYBA. I take immense pleasure in proposing the vote of thanks. I would first like to thank our chief guest, Mrs. Sureka Madam, Principal of Sitit School, and also Mrs. Sheetal Madam, a teacher of Sitit School, who has spared their time in their busy schedule. And also, despite of so much of network issue, you stayed back and answered all our questions. Thank you so much, ma'am, for that. I would also like to thank our principal, ma'am, Dr. Amruta Panda, who has supported and organized this event for us. Further, I would also like to thank our professor for their continuous support in all our activities. Last but not the least, all my classmates for their presence. Thank you all once again.